Okay, so in the previous lecture I was telling you how India got compressed into the Laurasia and how the mountains were formed. And once again I'm going to describe you here. I was just discussing about the Tith Sea also. You can see the sea over here. This is a small illustration to explain you. Rivers are there. What happened after that? The sediments are deposited over here due to which the compression are created here. ठीक है, compression by the प्लेट मूवमेंट्स. एंड जब ये प्लेट मूवमेंट्स जब ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड होती हैं प्लेट्स, तो इस तरह से फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं. सो यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स ओवर हियर, how the fold mountains are formed. In the same way, our Himalayas, these are the young fold mountains, are also formed due to the plate movement, due to the compression by these plate movements, which led to the formation of these young fold mountains. So you can see Himalayas over here. Okay, so these Himalayas, children, these are the young and structurally folded mountains. These are structurally folded mountains, and it runs on the northern border of our country. These mountain ranges, they run from west to east directions, from Indus River to the Brahmaputra River. I would like to show you here from Indus River. Indus River is, you can see over here, Indus River. I am going to show you here. Indus is here. Okay, Indus River is here. To the Brahmaputra River. Brahmaputra River, it flows from here, Mansarovar Range, lake, and it enters from in Arunachal Pradesh, inside India, in Assam, and after that words it meets in with the Ganges and flows in the Bay of Bengal. So Brahmaputra River is here. So this mountain ranges, it starts from Indus River to the Brahmaputra River. Clear? Okay, so Himalayas, these are the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. It forms an arc. Arc, you know, curved surface. This is arc. It is in the form of an arc. These mountains are in a form of an arc, and it covers a distance of 2,400 kilometer. Total distance from here till here is 2,400 kilometer. Now, up, you can see from here that on the northern side, these mountains जो हैं, these are wide enough that width is around 400 kilometer. ये 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं. और जब when you will reach towards the east side, you can see that these mountain, their width is only 150 kilometer. Okay, so you should know what is the total distance of these mountain ranges. That is 2,400 kilometer, and the width, which is in Kashmir, it is 400 kilometer, and when it comes down in Arunachal Pradesh, it is only of 150 kilometer. So these you can also see the altitudinal means the height variations also. The height variations, you can see the height of these Himalayas are more in the northwestern part in comparison to the eastern part of India. अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में आपको ये पहाड़ इतने ऊंचे नहीं दिखाई देंगे जितना कि आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगे. नाउ इन दीज हिमालयन रेंजेस there are the three parallel ranges. Three parallel ranges are running over here. Three parallel ranges. आप तीन रेंजेस देखोगे, तीन लाइन में पैरेलल रेंजेस यहाँ पे चल रही हैं. ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आप इसके अंदर वैलीज भी आपको देखने को मिलेगी. रिवर्स आर ऑल्सो फ्लोइंग डाउन फ्रॉम हियर. एंड द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, सबसे ऊपर जो आपकी रेंज जो दिखाई देती है, दैट इज द, जिसको कि हम ग्रेटर हिमालयाज बोलते हैं या इनर हिमालयाज बोलते हैं या इसको हिमाद्री भी बोलते हैं. दीज आर द ग्रेटर हिमालयाज, एंड यहाँ पे सबसे लॉफ्टीएस्ट, सबसे ऊंची पीक्स देखने को मिलती है. इनकी हाइट जो है, इट्स हाइट इज़ अराउंड 6,000 मीटर्स, एंड ऑल द important Himalayan peaks, that is Mount Everest, Kanchenjunga, all these mountain peaks are found in these greater Himalayas only. Now towards the south of this greater Himalayas, you can see the next range, which is called as the Himachal range. The other range is the Himachal range. ये Himachal range है. ठीक है,
हिमाचल रेंज है जिनको हम लेसर हिमालयाज बोलते हैं। ये ऊपर वाले ग्रेटर हिमालयाज हो गए हैं, ये अब लेसर हिमालयाज आते हैं। ये रेंजेस जो हैं इट इज़ हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में बनी है, ऑल्टर्ड रॉक्स हैं। और इसके ऑल्टीट्यूड जो माउंटेन्स की है मैंने आपको बताया था, उसमें जो है 6000 फीट हाइट तक होते हैं, 1000 फीट हाइट तक माउंटेन्स होते हैं, अबव 6000 फीट माउंटेन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको माउंटेन्स जो है 3700 फीट से लेके मीटर से लेके 4500 मीटर्स तक आपको देखने को मिलेंगे। ओके, जिसमें कि पीर पंजल रेंज, यू कैन सी पीर पंजल ओवर हियर। I'll show you once again. Pir Panjal range is here. This is the Pir Panjal range. And this Pir Panjal range is the longest and the most important range. धौलाधर, महाभारत रेंजेस, ये भी प्रोमिनेंट रेंजेस है। महाभारत रेंज, मसूरी रेंज है, महाभारत है, ये भी इंपॉर्टेंट रेंज, लेकिन पीर पंजल रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी वैलीज़ भी हैं, जैसे काश्मीर वैली है, कुल्लू आपको यहीं पे मिलेगी आपको, और उसके बाद कांगड़ा वैली है। ये सारी वैलीज़ आपको इन्हीं पीर पंजल रेंज में देखने को मिलेगी। इसलिए ये पीर पंजल जो रेंज है, ये जो लेसर हिमालयाज हैं, दीज आर ऑल्सो नोन फॉर ब्यूटिफुल हिल स्टेशंस इन इंडिया। ओके, आफ्टर दैट द आउटर मोस्ट रेंज, इसके जो नीचे आता है लेसर हिमालय, पहले ग्रेटर हिमालयाज आ गया, फिर लेसर हिमालयाज आ गया, उसके जो नीचे रेंज आती है वो शिवालिक रेंज होती है। This is called as a Shivalik range, and these Shivalik range they extend a width of 10 to 50 किलोमीटर होती है। इनकी ऑल्टीट्यूड जो हाइट होती है 900 से 1100 किलोमीटर्स तक की होती है। एंड these are also composed of unconsolidated sediments which are brought down by the rivers from the main Himalayan ranges, ठीक है। and these valleys are covered with a thick gravel and alluvium, and longitudinal valleys जो लेसर हिमालयास में आती हैं, शिवालिक्स में आती हैं, इनको हम दून्स बोलते हैं। वंस अगेन, द वैलीज विच कम बिटवीन लेसर हिमालयास एंड शिवालिक्स, इनके बीच में जो आपकी वैलीज आती हैं, दीज आर कॉल्ड एज द दून्स, जिसमें देहरादून है, कोटली दून है, पटली दून है। ये कुछ वेल नोन दून्स हैं। प्लीज़ लर्न इट व्हाट आर दून्स। नाउ बिसाइड्स लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, हिमालयाज जो हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के साथ साथ हिमालयाज जो हैं उनको रिवर्स के अकॉर्डिंग भी हमने रिवर जो वेस्ट से ईस्ट में फ़्लो कर रही हैं उनके बेसिस पे भी हमने डिवाइड कर रखा है। एंड फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे इंडस रिवर है, इंडस रिवर से लेके ये सतलज रिवर है, सतलज, इसके बीच में जो रेंजेस आती हैं इनको हम पंजाब हिमालयाज बोलते हैं, ठीक है। और फिर सतलज से लेके जो काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज आते हैं, आप देखोगे इसमें आपका उत्तराखंड आ रहा है, इसमें नैनीताल एंड ऑल है। यहाँ पे इसको हम कुमाऊं रेंजेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? दीज आर कॉल्ड एज कुमाऊं रेंजेस। यू कैन सी काली रिवर ओवर हियर। फ्रॉम काली रिवर टू तिस्ता रिवर इज़ इन आसाम, ठीक है। फ्रॉम काली रिवर टू तिस्ता रिवर, ये जो रेंज होती है इसको हम नेपाल हिमालयाज बोलते हैं। ये नेपाल हिमालयाज है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम तिस्ता टू दिहंग रिवर, दिहंग जो है वो यहाँ पे अरुणाचल से जब ब्रह्मपुत्र इधर आती है उसके बीच में जो ये आती है दिहंग रिवर आती है, इसको हम आसाम हिमालयाज बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रॉड जो रिवर के बेसिस पे हमने हिमालयाज को डिवाइड कर रखा है। नाउ ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्टर्न साइड्स में आती है, एंड दिहंग के बाद दिहंग जॉर्ज के बाद हिमालयाज जो है यहाँ पे जब जॉर्ज आता है, इसके बाद जो हिमालयाज नीचे आते हैं टूवर्ड्स द ईस्टर्न बाउंड्री से ये नीचे की तरफ आते हैं। और पूर्वांचल जिनको कि ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स बोलते हैं, ये हिल्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, एंड ये पैरेलल रेंजेस हैं, वैलीज़ हैं, जिसमें कि इस पूर्वांचल में आपको देखोगे मीज़ो हिल्स देखने को मिलेगा, लोशाई हिल्स मिलेगा, मणिपुर हिल्स मिलेगा, नागा हिल्स मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको गारो, खासी एंड जैंतिया ये हिल्स देखने को आपको मिलेंगे। ये आसाम के साइड पे, ये देखिए 3 डॉट्स लगे। वंस अगेन आई विल शो इट टू यू, इरेज ऑन, यू कैन सी गारो, खासी एंड जैंतिया, ये 3 हिल्स हैं। ये सब आपको पूर्वांचल हिल्स इनको बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम दिहंग जॉर्ज इट टर्न्स, द हिमालयाज टर्न्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, एंड यहाँ पे ये पैरेलल रेंजेस में रन कर रहे हैं, जहाँ पे ये डिफरेंट आपको छोटे हिल्स देखने को मिलेंगे, जिनकी हाइट जो है 900 to 1100 मीटर्स होती है।
So this much is enough for today. So children, revise once again about the Greater Himalaya. This is very important. इसमें नंबर 1 क्वेश्चन आ सकता है, हाउ हिमालयाज वेर फॉर्म. इसके बाद आपसे डिफरेंट रेंजेस के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट आर दून्स पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्स डिमार्केशन, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है. वेरियस हिल स्टेशंस के बारे में पूछा जा सकता है जो कि पाए जाते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं. शिवालिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, शिवालिक्स को एक्सप्लेन करो. शिवालिक्स आर द लोअर माउंटेन हिमालयन रीजन्स. उसके बाद लेसर हिमालयस को या तो एक्सप्लेन करो या ग्रेटर हिमालय. So this is a very important topic. Go through it properly, thoroughly from your books, and tomorrow I am going to discuss about the northern plains.